what Indian knowledge system is, how does it affect different aspects of our life, especially in modern context. आपको पूरा समंदर लेना है तो हम अगस्त्य ऋषि तो है नहीं कि जो पूरा समंदर पी जाए, आता रहेगा। तो जो हमारा ज्ञान है उस सागर से आपको लेना है। How meditation and yoga helps in addressing mental health. रामायण काल में प्रभु श्री राम जब वनवास गए तो सीता माई है उनका हरण, जाहिर सी बात है उनको भी स्ट्रेस आया होगा। तो उन्होंने वो स्ट्रेस के साथ कैसे डील किया, वही आगे हमें रामायण काव्य में पढ़ने के लिए मिलता है। वहां पे कैसे हम लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड। मेडिटेशन मीन्स आपने किसी भूखे को सच में उसको जरूरत है, उसको खाना खिलाया, वो भी एक साधना है। कोई बच्चा है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, आप उसको पढ़ाइए, वो भी एक मेडिटेशन का पार्ट है। I am more focused on ethical leadership and value-based leadership. Do you feel our knowledge systems can actually inspire value-based leadership? Any knowledge system will always advocate niti or niyat, whether it is ancient Indian system or any other civilization. In my opinion, in the last 50 years, these two things have been given a go by. Niti and niyam. Niyat is not the hallmark or the part of the system. So leadership crisis is certainly there. Leaders will come from among us. They don't come down from the heavens. Preserving traditions or adapting for modernity, what will ensure a stronger future for IKS? Adoption. Universal principles or contextual applications? What is the best way to make IKS relevant globally? Contextual application of universal principles. Mental well-being practices or physical health system is more critical in today's world? Mental well-being. The Indian knowledge system embodies a holistic and culturally rooted approach to education. It integrates traditional values with contemporary knowledge, fostering a comprehensive understanding of the world. Look for the silver lining whenever a cloud appears in the blue. Hello and welcome to Between Us. Make every conversation count. Today I have two very interesting guests, and the topic of our conversation is Indian knowledge system. The first guest, Dr. Vijay Jangam Swamiji, as I call him Guruji, has already been a part of our podcast episode. We spoke about astrology, we spoke about yoga, we spoke about meditation in our first episode. Today we're going to talk about the Indian knowledge system. And our second guest, who's coming on our show for the first time, is Sri Satyanayan Srimali ji. The Indian knowledge system encompasses elements which can address modern challenges and has solutions if we look inwards. And inward looking is the most important aspect of it. We're going to talk about how IKS or Indian knowledge system can be used to look for not just global challenges, to look for not just solutions for the global challenges, but also how we can lead a healthy, happy, wholesome life. Guruji, thank you for joining me on the show. बहुत Satyanayan ji, thank you for joining me on the show. Pleasure for me. Thank you. Before we get into our podcast in detail, for me personally and for all our viewers, if both of you could share the perspective of what is IKS. We know it's Indian knowledge system, but that's very vast. If you could help us understand what Indian knowledge system is, how does it affect different aspects of our life, especially in modern context? सी आपने आंसर दे दिया कि दिस इज अ वास्ट सब्जेक्ट, राइट? सो IKS, Indian knowledge system, is actually vast subject, but in my perception it is not. आपको पूरा समंदर लेना है, ये समंदर जैसा है, पूरा समंदर लेना है तो हम अगस्त्य ऋषि तो है नहीं कि जो पूरा समंदर पी जाए। आप एक ड्रॉप ले लीजिए पहला, फिर आपका पावर बढ़ा दीजिए, फिर आप एक स्पून से ले लीजिए, फिर आप बाल्टी लेके जाइए, फिर आप मोटर लगाइए, पंप लगाइए, वो आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। सो जो हमारा ज्ञान है उस सागर से आपको लेना है। इसका सीधा डेफिनेशन एक है कि बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स है, लेकिन मैं दो पार्ट में कहना चाहूँगा। एक
डॉक्यूमेंट्स मीन्स लिटरेचर, कौन से लिटरेचर आपको पढ़ने हैं। दूसरा है लैंग्वेज। तो सबसे पहले जो आपका लिटरेचर है उसमें क्या क्या चीजें हैं। वेद, वेद इज नॉट एनी पर्टिकुलर बुक, वो एक लाइफ जीने का मतलब साइंस का बहुत बड़ा अलग दुनिया है। उसमें केमिकल साइंस है, उसमें लाइफ साइंस है, उसमें बायोलॉजी है, उसमें टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजें आपको वो जानना है, सीखना है। उसके भी कई सारे अलग अलग पार्ट है, जैसे कि उपनिषद है, उसमें पुराण है, और पुराण तो बात की बात है, उपनिषद है, उसमें आगम है, निगम है, व्याकरण है, खंड है, अलग अलग चीज है उसमें, आपको वो पढ़ना है। दूसरा उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारा है वो लैंग्वेज। जितने भी वेद की कारिका है, संहिता है, ऋचा है, वो सब संस्कृत में है। संस्कृत के बाद में कुछ सालों के बाद, कुछ पीढ़ियों के बाद जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया उसमें, जिनको हम एंशिएंट साइंटिस्ट कहते हैं, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने आप जैसा, हमारे जैसा सर जैसा कोई मिला तो उसको लगा कि थोड़ा इजी होना चाहिए लोगों के लिए। सिंस 10th सेंचुरी बोलिए, 12th सेंचुरी बोलिए, 15th सेंचुरी बोलिए, तो किसी ने इम्प्लीमेंट करके उसने थोड़ा इजी करे, उसको कहते हैं प्राकृत लैंग्वेज। उसके आगे और एक लैंग्वेज है पाली लैंग्वेज। पाली, तो उस लैंग्वेज में भी ये सारी चीजें हैं। वी हैव टू फाइंड आउट, आपको चेक करना है, देखना है। जो चीजें समझ में नहीं आती है उसमें एक डेंजरस चीज होती है। हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम एंशिएंट साइंस को पढ़ते हैं या फिर स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसमें अपने हिसाब से अजम्पशन लगा लेते हैं। जो समझ में नहीं आया ना, उसको वही छोड़ दीजिए, अपना दिमाग मत लगा दीजिए। कोई एक्सपर्ट रहेगा, उससे पूछिए, वो 4 एक्सपर्ट से वेरीफाई कीजिए, तो ही उसका डेफिनेशन निकाल दीजिए। अदरवाइज मैनी पीपल डेट ये ऐसे ऐसे है, तो इसका मतलब यही होना चाहिए। वो विल डिसाइड ये आपका कॉपीराइट है। ब्रह्मा जी ने कब कहा है कि मैंने सामवेद लिखा, ये लिखा, इसमें मेरा कॉपीराइट है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। आज 4 पन्ने क्या लिख दिया, ब्लॉग स्पॉट लिख दिया, हर एक कोई कॉपीराइट करने लगता है। ये नॉलेज आया कहाँ से? जब तक ये कॉपीराइट सिस्टम नहीं जाएगा ना, वो होना चाहिए, टेक्निकल चीज है, लेकिन जो चीजें लोगों को बांटनी चाहिए वो बांटनी चाहिए। तो ये 2 मेन पार्ट है। उसमें जो पहला पार्ट जो मैंने कहा लिटरेचर, सेकंड लैंग्वेज, और एकदम आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। जो हमारे आज का एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, सबसे पहले छोटे बच्चे जो है 5 साल तक कोई भी स्कूल में एडमिशन बंद होना चाहिए। जो भी परवरिश करनी है उनको संस्कार देने होते हैं। सबसे पहले पार्ट आता है संस्कार का। आज के माँ बाप हम क्या करते, प्ले ग्रुप में डाल देते, बिकॉज ऑफ पापी पेट का सवाल है, उनको काम पे भी जाना होता है, तो या तो दाई आती है, बाई आती है, नानी आती है, जो भी आती है, या तो उसके पास या फिर डे केयर सेंटर में। तो आप सोचिए कि उसके पास कैसे संस्कार होंगे उस बच्चे के ऊपर। ये सिस्टम को मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे आप अपने बच्चे को पाल सकते हैं, वैसे कोई भी डे केयर, कोई भी नैनी, कोई भी दाई माई ये नहीं पाल सकती। आपको सिर्फ पालना नहीं है, खाना नहीं खिलाना है, उसके ऊपर संस्कार भी करना है। तो ये काम माँ बाप का ही होता है। तो पहले 5 साल माँ बाप ने बच्चों के ऊपर संस्कार करने चाहिए। यही इंडियन नॉलेज सिस्टम की पहली नींव है। उसके बाद में गुरुकुल पद्धति जैसे थी, उस प्रकार की शिक्षा मिले। ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज है हमारे देश में कि आपको कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, आपको यहाँ पे आना है तो हर चीज सीखना है। 64 कला है, 64 विद्या है, ये हर एक उसमें से जितनी आप दे सकते हैं उतनी देना है, आपको सीखना है। म्यूजिक भी सीखना है, डांस भी सीखना है। डांस कौन सा है? क्लासिकल डांस है, उसमें भरतनाट्यम है, कथक है, ये है, वो है, सब आपको कंपल्सरी है, वो सब्जेक्ट है, उसके मार्क्स मिलेंगे आपको। हमने बहुत सारे ऐसी चीजें यहाँ पे लाई। हिस्ट्री भी, कहाँ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? जो कि फेक नैरेटिव्स है, वो हिस्ट्री हमें पढ़ाई जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इनके बारे में कितना लिखा है? ये तो अभी 200-300 साल पहले की बात करो, लेकिन उससे भी पहले हमारा मेन कल्चर क्या है, उसके बारे में कौन बताएगा हमें? कब बताएगा?
तो जब तक वो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, नॉलेज सिस्टम हम नहीं लाते, तब तक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं, वो तो भूल जाओ. सो ये मेन बेस है, प्लेटफॉर्म है इंडियन नॉलेज सिस्टम में. दिस इज द ओनली इंडियन नॉलेज सिस्टम. Satyanarayan sir, your To me, the Indian knowledge system is all about from cosmos to the way of life. Mhm. And it can encompasses health, well-being, economy, character, every aspect of the life, universe, environment, surroundings in the Indian knowledge system. It's too vast to describe in words. But does it have answers to all the challenges we face today? I believe so. Mhm. This is my belief that yes, I'm not an expert, but I believe that that system has the answers to everything. To all the global challenges we face today. Yes, All right. I believe so. So we begin with the first segment, What Matters. I thought the best way to start is to discuss mental health because I think it's one of the most Yeah, and this is my part as a psychologist. as a psychologist. There is a lot of conversation, Guruji, around how meditation and yoga helps in addressing mental health. From an Indian knowledge systems perspective, I really want to understand this from you. Do you think traditional healing systems, they can provide insights into reducing stress and help in overall emotional well-being? Your thoughts around it? सी फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं, स्ट्रेस आया कहाँ से और कब स्टार्ट हुआ है स्ट्रेस. जैसे कि हम द्वापर युग की बात करें तो उस टाइम पे स्ट्रेस नहीं था. जरूर होगा. लेकिन आज के स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है और उस टाइम की डेफिनेशन, उसमें डिफरेंसेस है. एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको. रामायण काल में प्रभु श्री राम जब वनवास गए थे तो सीता माई उनका हरण हो गया. तो जाहिर सी बात है उनको भी स्ट्रेस आया होगा. तो उन्होंने वो स्ट्रेस के साथ कैसे डील किया, वही आगे हमें रामायण काव्य में पढ़ने के लिए मिलता है. अब हम उसे कैसे लेते हैं, जैसे कि मैंने कई बार उदाहरण भी दिया है कि भगवद गीता का, वहां पे कैसे हम लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड है. तो स्ट्रेस को हम किस नज़र से देखते हैं, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं एक चीज़ कहूँगा कि कार्टिसोल हार्मोन्स, अब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली स्ट्रेस हो जाता है. हर किसी को स्ट्रेस है. छोटे बच्चे से लेके बहुत बड़े बड़े व्यापारी उनको भी स्ट्रेस है. जिसके पास पैसा नहीं उसको स्ट्रेस है, जिसके पास बहुत पैसा है उसको भी स्ट्रेस है. स्ट्रेस किसको नहीं है, हर एक को स्ट्रेस है. स्ट्रेस के साथ आपको डील कैसे करना है, तो बहुत पहले की बात, जितने भी हमारे दादा परदादा ये सारे लोग थे तो वो एक चीज़ कहते थे, आप कोई भी सवाल पूछो तो आप सबसे पहले जल्दी उठना स्टार्ट करो. प्रातः काल यानी ब्राह्म मुहूर्त पर आप उठना स्टार्ट कर दो. ये आज के टाइम पे भी लागू है. आप 4:30 को उठ जाइए, भले आप 2 बजे क्यों ना सोए रात को, 4:30 को उठिए. कुछ दिन कीजिए, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन कम से कम कीजिए. आफ्टर 21 days you will get result 100% guaranteed. So I have my first, I want to interject you there. 2 घंटा सो जाइए. That is modern science and everyone tells today that you have to have at least 6 to 7 hours of sleep, right? आप ये हमारे I would like to answer your question. Many people asked me regarding my schedule. As I'm following Ayurveda and many things. So as per Ayurveda, you don't मतलब आपको शाम को आफ्टर सूर्यास्त के बाद में कुछ नहीं खाना चाहिए, राइट? जैसे कि सुबह की जो आपका भोजन है, जो भी खाना है वो जैसे राजा जैसे होना चाहिए, भरपेट खाओ आप.
दोपहर का रहेगा वो राजकुमार जैसे, यानी एक बच्चे जैसा होना चाहिए, आप नॉर्मल खाओ। और रात का खाना भिखारी जैसे होना चाहिए, मतलब कुछ मत खाओ। ये सारी चीजें मैं नहीं फॉलो करता। मैं सजेस्ट करता हूँ, कंसल्ट करता हूँ। ऑन कैमरा कह रहा हूँ मैं, क्यों नहीं कर रहा हूँ? बिकॉज हर एक के पास ये सारी चीजें वो जनरल है। हर एक के पास अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, अपनी अपनी बॉडी और माइंड को दी गए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आप अपने माइंड और बॉडी के अधीन जितने हो जाओगे ना, उतने आप गुलाम होते जाओगे अपने खुद के। भले आप किसी और की गुलामी करो या ना करो, लेकिन अपनी भी गुलामी मत कीजिए, तो गुलामी की आदत लग जाएगी। एक किसी ने पूछा था, एक साधु महाराज से हिमालय में, एक पत्रकार था, तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी, आप में ऐसा क्या है कि बहुत लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, काफी सारे नेता वगैरह आ रहे हैं, तो और बाकी तो आप दिखने में तो एकदम नॉर्मल लग रहे हैं, ऐसा क्या चमत्कार कर रहे हैं आप? तो उन्होंने पूछा, कुछ नहीं, मेरे पास ऐसा स्पेशलिटी कुछ नहीं, लेकिन एक चीज मेरे पास है जो किसी के पास नहीं है। बोले क्या है? बोले जब भूख लगी तो मैं खाता हूँ, जब नींद आई तो सोता हूँ। बोले ये तो कोई भी करता है, इसमें नई बात क्या है? बोले आई रिपीट, जब भूख लगी तो मैं खाता हूँ, जब नींद आई तो सोता हूँ। सो इट मीन्स हमने आदत लगा ली है मॉर्निंग 7 बजे उठना, ब्रश करना, बाकी सारी चीजें करना, 8 बजे नाश्ता डाइनिंग टेबल पे, उसको मोबाइल के साथ में, सब फैमिली मेंबर अलग अलग। 9 बजे भाग जाओ, ट्रैफिक में फंसो, 10 से 8 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे जितना काम है करो, पूरा दिन स्ट्रेस लेके आओ, और स्ट्रेस कैरी करते 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 घर पे आ जाओ। दोपहर में भी आपका लंच स्ट्रेस के साथ होता है, रात का डिनर भी ऐसे ही होता है, सो जाओ। वीकेंड में कहीं बाहर जाओ, मजा करो, एंटरटेन करो, यही लाइफ है। सो इसमें श्रेयस और प्रेयस ऐसी 2 अलग अलग चीजें हैं। एक तो आपको सुख मिलता है और दूसरा समाधान मिलता है। तो आपको सुख चाहिए कि समाधान चाहिए, दैट इज डिपेंड अपॉन यू ओनली। इट्स अ वेरी सिंपल। लाइफ बहुत बड़ा दाव नहीं है, आप कैसे डील करते हो उसके साथ में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So do you truly, you believe that the ancient Indian practices such as yoga and meditation can truly help in... Not yoga, it's yog. Yog means युज। युज धातु, संस्कृत धातु से बना हुआ है वो। उसको है कि साथ में लाना। किसको साथ में लाना है? 5 एलिमेंट्स। आप 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कीजिए, अपने आप सारी चीजें हो जाएगी। दूसरा बात, मेडिटेशन का बात किया आपने। मैंने आई थिंक एक पिछले पॉडकास्ट में कहीं तो मैंने कहा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? कि आप आंख बंद करके बैठ जाओ, अंधेरा करो, मोमबत्ती ले लो, ये करो वो करो, कुछ सॉन्ग लगाओ या फिर कोई म्यूजिक लगाओ, गाइडेड मेडिटेशन ले लो। देयर आर 3600 टाइप ऑफ मेडिटेशन, मोर देन। तो उसमें एक्चुअल क्या है, कौन सा मेडिटेशन अच्छा है? तो हर एक के लिए देखिए एक संगीत बना हुआ होता है, एक म्यूजिक बना होता है हर एक के लिए। जब आप स्ट्रेस में रहते हैं या फिर टेंशन में रहते हैं, तो कोई एक सॉन्ग या फिर एक म्यूजिक, एक लिरिक्स आपके कान में आ जाते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। वैसे भी कोई मेडिटेशन आपके लिए रहेगा, वो ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आपको गुरु चाहिए, गाइड चाहिए, वो ढूंढने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब तक नहीं मिलता तब तक आप खुद आपको रिलैक्स किस चीज में लगता है वो आप कीजिए। और मेडिटेशन मीन्स वो जो आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, जैसे कि आंख बंद करना और वो करना, दैट इज नॉट ओनली मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स आपने किसी भूखे को सच में उसको जरूरत है, उसको खाना खिलाया, वो भी एक साधना है। Which you mentioned in the last podcast, that not necessary that every meditation is sitting in one place and exactly. कोई बच्चा है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, आप उसकी हेल्प कीजिए, आप उसको पढ़ाइए। आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपका टाइम दे सकते हैं, वो भी एक मेडिटेशन का पार्ट है। Guruji, does the Indian knowledge systems, the IKS, it emphasizes about wellness over disease treatment. How does that happen? See, Indian knowledge system is a very ancient system. जैसे वेदास है, वेदास में बहुत सारे अलग अलग अंग है, जैसे वेदांग ज्योतिष है, आयुर्वेदा उसमें है, चरक संहिता आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, सुश्रुत संहिता सुना होगा, बहुत सारी चीजें ऐसे। ये सारी चीजें जो है आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ
एंड मेंटल हेल्थ के लिए, इवन सोशल हेल्थ, Hmm. इवन इकोनॉमिकल हेल्थ, Hmm. सबके लिए इक्वली वहाँ पे अवेलेबल है. I want you to talk a little bit about the social health and economic health also. That's I'm not saying that's quite difficult, but you have to learn. But आप just जब give तक- me an आप overview जब- of that. Yeah, definitely. हाँ. आप जब तक वहां पे पहुंचेंगे नहीं, कैसे होता है किसी हमारे यहाँ पे जो आज की एजुकेशन सिस्टम, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज की एजुकेशन सिस्टम रॉन्ग है एंड करप्ट है. क्योंकि एजुकेशन मीन्स क्या है, शिक्षा मीन्स क्या है, डिग्री लेना. आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई, आप ग्रेजुएट हो, आप मास्टर्स किया, आपने कहाँ पे किया, मैंने लंदन से किया, मैंने यूएस से किया, बस आपका कद बड़ा हो गया. व्हाट अबाउट नॉलेज? आपके पास 10 डिग्री है, इट डजंट मीन यू आर नॉलेजेबल पर्सन. कि नॉलेज, संस्कार, इंसानियत, And the application of knowledge is also equally important. डेफिनेटली आप कहाँ यूज कर रहे हो. आपने नॉलेज लिया, शिक्षा लिया. हमारे देश में, हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में उसको शिक्षा नहीं कहते, उसको विद्या कहते. विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम. इससे बड़ा कोई धन नहीं है दुनिया में. एक ही चीज है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता. आपने गाड़ी ली, गाड़ी चोरी हो सकती है. बंगला लिया, बंगला कोई लूट सकता है. कुछ भी चोरी हो सकता है, लेकिन ये कभी चोरी नहीं हो सकता. जो आपका ज्ञान है वो कभी, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है. आप उसको बांटना स्टार्ट कीजिए. और उसे बढ़ता कैसे है कि जब अभी मैं एक टॉपिक के ऊपर कभी लेक्चर लेता हूँ, तो मैं हर लेक्चर में सीखता हूँ कुछ नया नया. स्टूडेंट से सीखता हूँ, जो मेरे कलीग होते हैं उनसे सीखता हूँ. एक वर्ड तो सीखता हूँ, एक सेंटेंस तो सीखता हूँ, और जरूर सीखता हूँ. और यही कोशिश हम सब ने मिलकर करनी चाहिए, क्योंकि हम सब विद्यार्थी है, लाइफ टाइम विद्यार्थी रहेंगे. और ये अगर हमारे दिमाग में आ गया तो हमारी ग्रास्पिंग पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. Can you share mind body connection जो ancient views है on physical and mental health? See, in Vedas there are different type of like agam and nigam. जैसे हम कहते हैं कि भगवान शिव जी है, उनके जो श्वास से निर्माण हुए वो आगम है, और निश्वास से उत्पन्न हुए वो निगम है. तो आगम और निगम, पुराण, शास्त्र, संहिता, उपनिषद, ये सारी चीजें उसमें जो है, हर एक चीज कहीं ना कहीं आपके मॉडर्न साइंस से कनेक्टेड है. आपने जो कहा कि बॉडी, माइंड एंड सोल, ठीक है, तो आपने सोल नहीं कहा था, आई थिंक आप बॉडी माइंड कहा था, लेकिन मैं थोड़ा आगे तक का सफर लेके जाता हूँ, सोल. सो हम सब है ना शरीर से प्रेम करते हैं. मैं कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ, ना ही कोई बाबा हूँ, लेकिन ये कंसेप्ट है, हम सब शरीर से प्रेम करते हैं. हमारा शरीर और किसी और का शरीर अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, उसके ऊपर अच्छे कपड़े होने चाहिए, परफ्यूम होना चाहिए, ये वो सारी चीजें हो जाती है उसमें. लेकिन व्हाट अबाउट सोल? हाउ टू फाइंड योर सोलमेट? आई थिंक लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने इसके ऊपर थोड़ा टिप्पणी किया था. सोलमेट मीन्स नॉट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड. टू सोल जो एक दूसरे से पूरक है. प्रकृति का कुछ काम उनको करना है, जो विधाता ने जिस काम के लिए आपको भेजा है. विधाता ने आपको पैसे कमाने के लिए नहीं भेजा है. विधाता ने आपको किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं भेजा है. विधाता ने आपको अपना स्वार्थ साधने के लिए नहीं भेजा है. विधाता ने इतना बड़ा शरीर दिया हमें फ्री ऑफ कॉस्ट. उसकी कीमत तब पता चलती है जब किडनी फेल हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, एक दांत टूट जाता है, तो डेंटिस्ट बोलता है कि इतना इतना लगेगा. तो 32 करो आप, फिर पता चलेगा कितना करोड़ों की बॉडी है. वो हम इग्नोर कर देते हैं. सो फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करना है तो आपको योग शास्त्र सीखना जरूरी है. किसी भी एज में आप सीख सकते हैं. और यही मैंने कहा ना कि अच्छा जो टॉपिक है, एजुकेशन सिस्टम जो हमारी है, उसको नॉलेज जो बोलते हैं, हमने क्या किया, बहुत अभी मुझे लगता है 1.5 या 2 साल के बच्चे स्कूल जाने लगे, अभी ऐसा कुछ सिस्टम आ गया है, थी राइट. जब हम छोटे थे तो 5-6 साल होने के बाद आई थिंक सर आपको अभी
याद होगा कि 6 साल के बाद में शिशु वर्ग वगैरह ऐसा कुछ था, लेकिन मैंने तो कभी शिशु वर्ग देखा भी नहीं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में जैसे वो दाखिला हुआ, स्कूल चालू। अभी तो ऐसे हो गया कि प्ले ग्रुप से जूनियर केजी, सीनियर केजी, और भी कभी अभी तो 1.5-2 साल के बच्चे अभी जाने लगे वहाँ पे। अभी तो मुझे ये डर है कि अभी जैसे ही एक बच्चा आपके अपने माँ के गर्भ में है तो उसका भी एडमिशन ये लोग करवा देंगे। ये होने वाला है, डेफिनेटली होगा। हमने मॉडर्न साइंस के नाम पे हर एक सिस्टम का मजाक बना के रखा है, चाहे वो एजुकेशन हो, फिनांस हो, सोशल हो, पॉलिटिक्स हो, मजाक उड़ा के रखा है, डिस्ट्रॉय किया है। और उसका रीजन ये है कि हमने हमारे कल्चर को सही नजर से नहीं देखा। ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर रूल क्यों किया? उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हमारा कल्चर और नॉलेज सिस्टम यानी एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। जो हमारी गुरुकुल परंपरा थी, जब तक गुरुकुल परंपरा हमारे देश में नहीं आएगी तब तक एजुकेशन सिस्टम में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। मार्क माय वर्ड्स। सो इंडियन नॉलेज सिस्टम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसीलिए तो हमें विश्वगुरु कहा जाता है। अभी हम विश्वगुरु नहीं है, अभी जो हम ये करें वो फेक नैरेटिव है। हमारा कल्चर और हमारी एजुकेशन सिस्टम यानी नॉलेज सिस्टम वो हमारा सबसे बड़ा वेपन है। वो जब तक हम शो नहीं करेंगे तब तक हम विश्वगुरु नहीं बनेंगे। पैसे से कोई विश्वगुरु नहीं बनेगा, एटम बम से कोई विश्वगुरु नहीं बनेगा। आपका नॉलेज वही आपकी पावर है। So you truly believe that one of the biggest challenges today, especially in the post-COVID world, has been, especially with regards to individuals, has been mental health crisis. Definitely. See, physical health, what is the mental health? अभी जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ। आपको नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ, इनको नहीं हुआ, सबको हुआ। लेकिन हमने वो सोचा ही नहीं कोविड है कि नहीं। जिन्होंने सोचा नहीं, दे ऑल सर्वाइव। जिन्होंने टेंशन लिया, मुझे कोविड हुआ, अभी क्या होगा, मैं किसी को छूऊंगा, मैंने कहा किसी को छुआ था, मुझे किसी ने छुआ, वो सब यहाँ पे बैठ गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। और आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार वो कीड़ा आ गया तो बाहर नहीं निकलता है, आपको निकालना पड़ता है उसको। तुरंत निकालो, हर एक को प्रॉब्लम है। तो मेंटल हेल्थ आपके कैसे आपके कंट्रोल में होता है। आपको पता है कि 90% जो डिजीज होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजीज? डिस स्पेस इज, जो आपको इजी नहीं है, अनईजी फील करता है, वो डिजीज है। कोई गंभीर बीमारी नहीं है। डायबिटीज इज नॉट डिजीज, इट्स अ टाइप ऑफ कंडीशन, योर ब्लड शुगर। और आज हमारे पास डायबिटीज का इतना होगा। ब्लड प्रेशर इज नॉट डिजीज, टाइप ऑफ प्रेशर, जो ब्लड सप्लाई है उसका प्रेशर है। इट्स अ वेरी सिंपल। और ये सारी चीजें आपको आयुर्वेदा में मिलेगी। तो वो मेंटल हेल्थ हो गया। व्हाट अबाउट सोल? एक लेवल होती है, एक लेवल के बाद आपको हर चीज है ना, ये सारी चीजें एकदम या तो फेक लगने लगती है या फिर उसमें रुचि नहीं लगने लगती। उस लेवल पे जाने का जो रास्ता है या फिर जाने की इच्छा है, वो सोल लेवल है। भगवान की प्राप्ति मतलब क्या है? भगवान ना तो आपने देखा, ना मैंने देखा, ना इन्होंने देखा है। कैसे दिखता है वो भी हमें पता नहीं, लेकिन मानते हैं, जानते हैं कि कोई ईश्वरी सत्ता है इस दुनिया में और वो कंट्रोल कर रही है, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रही है, वो अलग अलग नाम से। तो वहां तक पहुंचने की जो हमारी प्रेरणा है, वो सोल का पाथ है। Another, to me, I think I personally feel that we have a leadership crisis. I'm looking at Indian knowledge system and I'm looking at it from how it can solve global issues. And one of the crises we face today is leadership globally, I think. And it's not about the capability. I'm more focused on ethical leadership and value-based leadership, which is sorely missing today if you look around. The American election is, and the elections around the world. Do you feel our knowledge systems can actually inspire value-based leadership?
any knowledge system will always advocate niti or niyat. Whether it is ancient Indian system or any other civilization. In my opinion, in the last 50 years, these two things have been given a go-by. Okay. Niti and niyam. Niyat is not the hallmark or the part of the system. So leadership crisis is certainly there. And I do not foresee how it can be solved, because leaders will come from among us. They don't come down from the heavens. So if we don't have that system in ourselves, how the leader will be? So we get what we deserve. They come from among us. And this is the biggest casualty of the humankind. Do you feel that our ancient Indian, I don't want to use just the word knowledge system, but if we were to look back a few centuries back and how our leaders were, at those days, we could call them kings or emperors or whoever they are. What do you think they brought to the table which today's leaders don't? See, in all times, whether you talk of Ramayana or Mahabharata or even last 1,000 years or 2,000 years, there have been good and bad characters always. Good leaders, bad leaders. There was Ram also, there was Ravan also. There was Duryodhana also, there was Yudhishthira also. In recent times, there was Jayachandra also, there was Maharaja Pratap also. A leader is a person who makes sacrifice for his people. He lead them from the front and with his actions rather than preaching. This is how a leader should be, that he is universally followed for his actions. I want to have a follow-up question on this, sir. And the reason why I'm asking you this is, when I said that we have a leadership crisis, one of the things which I really believe leaders today clearly lack, and this is just in general, this is a perspective I felt I need to bring forward, is we talk about fairness, we talk about inclusivity, we talk about empathy, we talk about, basic humility. Growing up in a joint family, I've heard stories. My nani was my source of storytelling. And I've always heard how in the good old days, the king would dress up like a common citizen, walk through the streets and figure out what is going right, what is going wrong, and how there was a system of fairness in our society, in the Bharatiya culture, which stems from, family values, culture, equality, fairness. But when we look around today, there is always a debate. I'm not bringing the politics to it, but one person or the other always feels, or one group or the other always feels that they are being left behind. Do you think if you look back into our Indian ancient culture, our system, do we have answers to those questions? Do we have answers? Can we bridge those gaps which is missing today? See, you mentioned of the joint families. The basic character of the joint family was sharing. Yeah. And caring. And you never felt alone. I fight with my uncle or father, grandfather is there behind me. So the emotional support was within the family. And that was a strength. So you never felt left alone in the family. And then there was nothing which is yours. A towel is common for all. Anybody who gets in, it is his.
There is no separate bed for you. It is yours. So go and sleep first. So that as a nature, we had that sharing and never the jealous. Which now from our childhood, we are a 3-year-old child knows it is his article, it is his toy, it is his bed, it is his pillow. And then he feels possessive. So we are into individualistic character now. And that is reflecting in the way Yes, our society is, our how leaders our are. society is and how we behave. As far as the leadership is concerned, there is no solution today. Because there may be certain thing fair and right. But there may be something wrong, but which is necessary. So sitting in a certain position, though it is wrong, but it is necessary for me to do so. So it happens and it has So to be done. decision making is always debatable. It's debatable. It depends on the situation and what is your goal. Slightly off topic, but when I see the world today, you look at the US, you look at Europe, and clearly they are not what they were at one point in time. I feel we as Bharat are perfectly positioned to take, some people say rightful place. I don't know how you define the word rightful place, but at least we can show the world through our ancient cultures, our systems, our family values, how we can conduct ourselves. Do you agree, first of all? No. Okay. Our knowledge system, our knowledge, our past, oh, good talking. It makes sense. But are we following them? So how we are a perfect situation or solution or people? I see in my country, everybody is dishonest. Dishonesty is in our DNA. Whether you like it or not, but it's a fact. If I will share with you, I was in a foreign country for a night and I saw the discipline there. I saw the honesty because of the fear. Nobody is honest. Honesty is imposed. It's fear that if you are caught, what? दुनिया में 2 ही चीज चलती है, भय और aspiration. Either aspiration or fear. You do or don't do because of these 2 things. There I saw that nobody dared to pick up a lost item. Somebody's gold coin is lying or nobody will pick up. Nobody will break a signal. In my country, because they have created a system, you do a wrong and you are caught for certainty. Here there is chance is 1 in 10,000. So people have taken the system for granted. Our education or our upbringing is such right now that I do a wrong and I feel proud. Oh wow, me is smart, ha, murkha sala. So that has to be brought down, that has to be broken now. Otherwise, we have no future. When we look at environmental practices in IKS, are there some lessons we can draw from ancient agricultural practices Definitely. and water conservation techniques? Aaj, can they apply some of those old principles in today's times? कर सकते हैं. अभी आज के ज़माने में भी कुछ परंपरा वगैरह हम फॉलो करते हैं, लाइक कि रिचुअल्स जो होते हैं हमारे, जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा कि जो वट सावित्री की पूजा वगैरह करते हैं, और हर एक हमारे हिंदू कल्चर में आंगन के सामने तुलसी होती है. अभी यहाँ पे फ्लैट कल्चर है तो यहाँ पे भी घर में एक छोटा सा पौधा होता है, उसमें तुलसी जरूर होती है. शास्त्र में कहा गया घर में तुलसी रखना शुभ होता है. ये हमारे दादी ने कहा है, नानी ने कहा है, सब ने कहा है. उसका साइंटिफिक रीजन ना तो दादी ने बताया, ना तो नानी ने बताया, और ना ही हमने ढूंढने की कोशिश की. सो यू हैव टू फाइंड आउट ऐसे तुलसी में क्या गुण है. इज दिस मेडिसिनल प्लांट? वहां से जो लीव्स है, तुलसी लीव्स है, वो खाने के बाद या फिर रखने के बाद, वो प्लांट रखने के बाद क्या एनर्जीज क्रिएट हो जाती है, एनवायरमेंट चेंज हो जाता है. अब
कोई भी बच्चा, अभी आजकल तो इतना मॉडर्न साइंस एडवांस हो गया है, तो आपके घर में वो सब चीजें आ जाती है। माइक्रोचिप्स आप लेके देख सकते हैं, उसमें माइक्रो नॉलेज हम जिसे एडवांस में बोलते हैं, हर एक चीज छोटी छोटी जितना जाना है डीप जाओ, आपको जो भी मिलेगा बेनिफिट मिलेगा। अभी उसी का एक पार्ट है, समझो वास्तुशास्त्र की बात करता हूं मैं, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। उसमें कहा गया है कि वास्तुशास्त्र प्रवक्ष्यामि लोकानाम हितकाम्यया। इसका मतलब क्या है? वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो लोगों के हित के लिए काम आ रहा है। अभी हित क्या है? हित और सुख दोनों का अंतर अभी मैंने बताया। अभी एसी चला ही यहाँ पे, ठीक है, वो सुख है, हित नहीं है। एसी के वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसका रिसर्च हमें करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे कि बोन के ऊपर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हमारे इंटरनल मतलब जो लंग्स है उसके ऊपर प्रॉब्लम हो रहे, धीरे धीरे होंगे। एक दिन में एसी बैठने से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर नहीं होगा, लेकिन कभी तो होगा। ये सारी जो मॉडर्न टेक्निक जो है वही इफेक्ट कर रही है। आप नेचर में रहो, आप -5 डिग्री में रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप 16 डिग्री के नीचे एसी लेके आओ और 1 घंटा रुक के देखो आपकी क्या अवस्था होती है। आप बताना मुझे, आप ट्राई करके देख लीजिए। तो वहां पे जो कहा गया है कि आप वास्तु बनाने के लिए, नई वास्तु बनाने के लिए जो अपना महामार्ग है उसका वुड जो लकड़ी है वो इस्तेमाल मत कीजिए, अशुभ होता है, ऐसे डायरी लिखा है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? उस टाइम पे जैसे विश्वकर्मा वास्तु प्रकाश है, मय मतम है, ये तो हजारों साल पहले के ग्रंथ है। उस टाइम पे ये ट्रैवलिंग का सिस्टम नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, और ये पर्पस से उन्होंने कहा गया है कि जो बड़े बड़े रास्ते थे वहां पर लोग आते जाते रहते थे, घोड़ा गाड़ी से, पैदल, जैसे जैसे बैलगाड़ी है। और कुछ मैल जाके एक ऐसा बड़ा सा पेड़ देखते थे और उसके नीचे बैठ जाते थे, अपना खाना खाते थे। रात हो गई तो वही सो जाते थे, कभी पेड़ के ऊपर भी सो जाते थे। जंगली जानवर अगर नीचे है जंगल के आसपास तो वहां पे सो जाते थे ऊपर जाके, बड़ा बड़ा पेड़ रहेगा तो। और ये सारे पेड़ आपने देखे कि रास्ते के दोनों तरफा लगे होते, वो छाव देते थे जो सफर करने वाला उसको। और इसीलिए उस टाइम पे जिन्होंने ये शास्त्र बनाया, उन्होंने रचना की, उन्होंने ये सामने रखे, ये मत तोड़ो। और इसीलिए अशुभ कहा, क्योंकि ये सारे लोगों के समझ में अगर आप समझाएंगे अरे ये लोगों के लिए जो पेडेस्ट्रियन है उनके लिए रखा है, तो बोला अरे इसको कुछ नहीं, कोई कौन आ रहा है यहाँ पे, मैं तो मेरे घर के लिए ही लगाऊंगा। लेकिन अगर ये बताया ना ये घर के लिए अशुभ है तो कोई काटेगा नहीं। इसके लिए इतने सालों से जितने भी रोड आप बड़े बड़े देखो वहां पे बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई देंगे। Modern healthcare, in modern healthcare, how do you think Ayurveda or alternative medicine can complement? Do they complement? या देखिए, अल्टरनेटिव मेडिसिन वी हैव मेनी थिंग्स लाइक होम्योपैथी, बाक फ्लावर रेमेडीज, एंड जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि मोर देन 50% मेडिसिन हमारे किचन में होती है। जैसे कि टर्मरिक है, जिंजर है, नमक है, बहुत सारी चीज है। एंटीसेप्टिक के लिए यूज करते हैं, या फिर इमीडिएट जैसे कि हमारे जलने से, कटने से वगैरह जो भी कुछ होता है तो तुरंत हम किचन में से हल्दी लगा लेते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारी उसी में हो जाती है, राइट। तो मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करने के लिए डेफिनेटली आई सजेस्ट कि हमें आयुर्वेदा का ही सहारा लेना होगा। So we come to the final segment, rapid fire. We have divided this into 2 parts. Okay. One is fun and interactive, and I would like both of you to answer it independently. And the other is this or that. Okay. So I'll begin with fun and interactive question. If you could have a dinner conversation with one ancient Indian philosopher, who would it be? It's very interesting. बहुत सारे लोगों के साथ मैं डिनर करना चाहूंगा। Okay. आपका? महर्षि व्यास। What's your favorite Vedic text or scripture? भगवत गीता।
I have not read. Describe IKS in 3 words. Life and science. I don't know about third word, but yes, life and science. Sarve bhavantu sukhina. We go to this or that. Health psychology or alternative medicine, which offers deeper insights for holistic well-being. Health psychology. Psychology. Preserving traditions or adapting for modernity, what will ensure a stronger future for IKS? Adoption. Correct. Vedic science or contemporary research, where should the focus lie for solving modern challenges? I think both. Both are important. Universal principles or contextual applications, what is the best way to make IKS relevant globally? Contextual application of universal principles. हाँ, ये सही था. Mental well-being practices or physical health system, which aspect of IKS is more critical in today's world? Mental well-being. Yes. Cultural identity or global acceptance, what's the priority in spreading IKS? Cultural I identity. think cultural, because आप cultural identity जब तक नहीं होगा तो globally आपको कोई accept नहीं करेगा. Nature-based remedies or technology-assisted solutions, which approach aligns better with IKS principles? All your questions are, you have to mix of both. So, हमें एंशियंट साइंस, एंशियंट टेक्निक एंड आज की जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न साइंस है, उसको अलाइन करके ही चलना होगा. सो वो एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा. क्योंकि आज के जो स्टूडेंट्स है उनमें ये सारी चीज़ें आप पढ़ाओगे कि जैसे आप वेद पढ़ो, उसकी ऋचा पढ़ो और ये सारी चीज़ें, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. लेकिन अगर वो मॉडर्न तरीके से आप उनको बताएंगे ना, सो डेफिनेटली वो होगा. तो एंशियंट साइंस एंड मॉडर्न साइंस दोनों को साथ साथ लेके हमें चलना पड़ेगा. ओके. Individual wellness or community health, what should be the primary goal of IKS based healthcare? Community healthcare focused with the individual well-being. Ancient text or oral traditions, which medium is more valuable for preserving the essence of IKS? Ancient text. That is authentic. All right, with that we end the rapid fire questions. So that was an interesting conversation. Guruji, Satyanarayan ji, thank you so much for your time. So any final message? देखिए, अभी जैसे हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे कि वेद ये केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, ये ज्ञान का भंडार है. आप जितना लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं. इसमें 4 पार्ट है. एक तो आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है. वो ऋग्वेद के भी मेन पार्ट जो ऐतरी है. आपका जो यजुर्वेद है उसके भी 2 पार्ट है. एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद है. 2 अलग अलग, दोनों की जो संरचना है वो अलग अलग है, उच्चार अलग है. जैसे कि हम पुरुष सूक्त कहते हैं कि आपको ऋग्वेद में यदि कहना है और ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात्, तो ये उच्चार ऐसे है उसमें. और यही उच्चार अगर आपको कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में करना है, ऋग्वेद में ये उच्चार होते हैं, यजुर्वेद में अलग उच्चार होते हैं. और ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात्, ये अलग होता है. श और ख मतलब व्याकरण, ग्रामेटिकल डिफरेंसेस उसमें. तो वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती है. जैसे कि अभी सामवेद में है, उसमें केन है, छांदोग्य करके एक प्रकार है. दूसरा अथर्ववेद में प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक्य है. अलग अलग प्रकार. ये सब नाम आपको नहीं लगेंगे, लेकिन आप पढ़ो. मैं हमेशा बोलते हैं ना, सब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. अरे इंडिया बढ़ेगा कैसा? जो इंडिया को पढ़ना चाहिए इंडिया ने कभी सुना भी नहीं. जब तक इंडिया ये सुनेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, सब चीज़ें मिल जाएगी.
इवन ये सारी चीज़ें आजकल गूगल में भी उपलब्ध है। बाकी सब डाउनलोड करने के बजाय, सर्च करने के बजाय, ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो आप कीजिए, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट, सोसाइटी, हर एक के लिए। दूसरा और एक है कि इसमें सब में लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगा कि शुक्ल यजुर्वेद में ईश और बृहदारण्यक 2 अलग उपनिषद है। और ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, ऐतरेय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मंडूक उपनिषद, अलग अलग उपनिषद है, हर एक का एक अपना अपना महत्व है। जैसे अभी श्रीमाली सर ने बताया कि वे ऑफ लाइफ हम कैसे देखते हैं, परसेप्शन क्या है हमारा, वे ऑफ लाइफ, तो सेम ऐसा है कि इसमें जो कृष्ण यजुर्वेद में, ऋग्वेद में ऐतरीय है उपनिषद और कृष्ण यजुर्वेद में तैतरीय है, और लास्ट में जो है वो कठ यानी कठ उपनिषद। इसमें बहुत अच्छा उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कठोपनिषद में, हर एक को पढ़ना चाहिए। इसमें कहा गया है कि एक राजा और राजा का बेटा, उनकी कहानी उसमें बताई है। और ये कठोपनिषद कैसे निर्माण हुआ, मृत्यु की देवता यम और उस राजा का पुत्र नचिकेत, इन दोनों का जो संवाद है वो संवाद यानी कठोपनिषद। तो एक बार राजा अपने बेटे को कहता है कि जा तू कहीं जाके मर जा, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना, तू कहीं पे जाके मर जा। तो मरना मतलब क्या होता है, इस बेचारे छोटे बालक को पता नहीं था। तो दर भटक भटक प्रधान के पास गया, सबके पास गया। अभी राजा के बेटे को कौन बताएगा कि मरना मतलब क्या है, मतलब वो राजा को पता चलेगा तो वो इसको सूली पे टांग देगा। किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर वो नारद मुनि के पास गया, तो नारद मुनि ने कहा कि इसका जवाब आपको वही दे सकता है जो साक्षात ये काम करता है। तो आप यमराज के पास जाओ। यमराज के पास गए और पूछा कि मृत्यु मतलब क्या है। तो मृत्यु मतलब क्या है ये जानने के लिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, ये जानना जरूरी है। और वही सब कठोपनिषद में कहा गया है। दैट इज द, यही मेरा मैसेज है। Last words from you, sir. I think it was Confucius who had a very famous line. Whenever you take a step and put down your foot, try to see the face of your next generation in the sand, and then decide whether the foot is necessary or not. That is. So I believe what every action of ours should be sure that it is helpful and for the well-being of the next generation, or else we should not take that step. Wonderful, very profound. I hope each and every one of us lead our way that way. Thank you to both of you for your time. So that was Dr. Vijay Jangam Swamiji. I call him lovingly Guruji. He's been a mentor for me personally, and Shri Satyanarayan Shrimali ji. It was for me personally truly an engaging conversation. Before I walked into the studio, I had some idea of Indian knowledge system because I read up about it. I'm passionate about our culture. Through the course of this conversation, I realized that our podcast is about stories. And as I always say, the most important story is the story we tell ourselves. And I wish and I hope that each one of us, we take time out to tell stories of our Indian culture, Indian traditions, and lead our life in a way that is inclusive, that is sustainable, and that would make the world a better place. Thank you for tuning in. Until next time, stay safe, stay healthy. Thank you for listening to this episode of the Between Us podcast. The producer is Santosh Kumar and the associate producer is Samyak Kamble. The Between Us podcast uploads episodes weekly, and we'll see you next time.